now? Last time we did cell membrane, plasma membrane. क्या क्या हमने last time किया है? Let you know. Okay, we have started with cell chapter, and in cell, last time we did types of cells. How many types of cells do we have, or do we know? We know two types of cells. One is prokaryotic, and the other is eukaryotic. Correct. One is prokaryotic, the other one is eukaryotic. Now, prokaryotic cell and eukaryotic cell, there is a very simple difference between them. Prokaryotic cell may major differences on the basis of which they are named. Major difference is prokaryotic cell doesn't have a proper nuclear membrane. So there is no defined, there is no distinctive nucleus. While in case of eukaryotic cell, I can see a distinctive nuclear membrane and a nucleus. Therefore, I can expect, if I see prokaryotic cell, if this is a prokaryotic cell, students, on your screen, then genetic material would be dispersed in the cytoplasm. Correct? Genetic material would be dispersed in the cytoplasm in case of prokaryotic cell. But if I look into eukaryotic cell, then inside eukaryotic cell, genetic material is confined. Genetic material किसके अंदर होता है? Genetic material होता है nucleus के अंदर. Correct? So I can see a proper nuclear membrane. Right, students? है ना? Proper nucleus दिखता है. And nucleus के membrane को क्या बोलते हैं? सब जोर से बताओ मुझे. ऑडियो पे बताओ जल्दी जल्दी. Nucleus के membrane को क्या बोलेंगे? Nuclear membrane. Nuclear membrane. शाबाश. Well done. Nuclear membrane. This is very simple terminologies we are going to use. Very simple terminologies we are going to use. All right. Now let me define this cell over here. So this is, I've drawn eukaryotic cell over here. Okay, students? Eukaryotic cell. And let me label this also. So this is genetic material over here. ठीक है? Genetic material मैंने draw कर दिया. और यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास. ठीक है? दिस इज वेरी सिंपल. इतना हमने किया था स्टूडेंट्स लास्ट टाइम. सबको याद आ रहा है? जिसको याद आ रहा है, जिसको समझ में आया था, वो दोनों हाथों से ऐसे करेंगे. जल्दी कर दो. दोनों हाथों से कैमरा में एवरीवन. रोशनी, अगर समझ में आया था तो ऐसे करना, नहीं समझ में आया था तो ऐसे करना. ऐसे. हाँ. ओके, लेट अस प्रोसीड. ओके, Khushi, did you understand this? So we have right now. Khushi, wait. I'll revise for you. Okay, how many of you are attending this session for the first time? Students, raise your hand. Let me see. How many of you are new to this session? किसका ये first bio session? Batch में first bio session. Okay, Sadicha, Khushi, Saili. Who else? Only three. Only three. If I can't see you, then you have to let me know on audio. Okay. Camera वापस सबके off हो गए हैं. Please switch on your camera, everyone. Switch on your camera, students. Keep your camera on. Okay. हाँ, चलो. So जिसका ये first lecture है, उसके लिए मैं revision करा देता हूँ. We had started with cell. Okay. We are doing chapter on cell. Okay, students. We are right now doing just introduction part on cell. I should say chapter name. I can say either cell structure. All cell unit of life. Basically, it is chapter based on cell. Cell के बारे में अपन पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है? So what did I start? I started first of all with how many types of cells do we have to study? So we have to study two types of cells. One is prokaryotic and the other one is eukaryotic. Clear? सदिच्छा, समझ में आया? दो type of cell हैं. एक है prokaryotic, एक को बोलते हैं eukaryotic. Prokaryotic मतलब क्या? ये ऐसे cells होते हैं in which we do not have proper nuclear membrane. Okay, that you can see this cell on the left hand side. Then we have eukaryotic cell. In eukaryotic cell, I can see a proper nucleus. Can you see proper nucleus over here on the screen? Khushi, Sadicha, Saili, बताओ मुझे, दिख रहा है proper? Yes. So if I can see nucleus, I will say it is a eukaryotic cell. If I cannot see a nucleus, I will say it is a prokaryotic cell. Okay. Now, what is there inside the nucleus? Nucleus के अंदर क्या होता है? Genetic material होते हैं.
Like in our case, it is chromosomes. Correct? Chromosomes are made up of DNA, and DNA is the genetic material. So I know that if I take out any cell out of my body, और अगर मैं उसको ध्यान से देखूं, मैग्नीफाइड इमेज चेक करूं उसका, so I'll be able to see nucleus, और उसके अंदर मुझे chromosomes नजर आएंगे. But in case of prokaryotes, because we don't have nucleus over here, can I expect genetic material to be dispersed, scattered in the cytoplasm? Can I expect genetic material to be scattered in the cytoplasm? Yes, Khushi. Yes, Khushi. बताओ मुझे. Can I expect that? Because nucleus is not there. जैसे भी खुशी के पीछे हमको कबर्ड दिख रहा है, देखो कबर्ड दिख रहा है ना. सो कबर्ड के अंदर सारे सामान रखे हैं खुशी ने. अगर कबर्ड नहीं होता तो वो सारे सामान बिखरे हुए होते थे, है ना, स्कैटर्ड रहते, डिस्पर्स्ड रहते हैं. सो वैसा यहाँ पे है, देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के केस में दिस सेल, लेजर चेक करो, लेजर मैंने कहा रखा है, दिस सेल ओवर हियर, दिस सेल डजंट हैव न्यूक्लियस. सो उसका जेनेटिक मटेरियल देखो कैसे डिस्पर्स्ड है साइटोप्लाज्म में. अंडरस्टूड? सदीच्छा अंडरस्टूड? साइली समझ में आया? समझ में आया तो ऐसा करते हैं हम लोग, सब लोग करते हैं ऐसा, दोनों हाथों से करो. हाँ, वेरी गुड सानिका. ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? सो वी डिड दिस फर्स्ट एंड देन अपन कहाँ चले गए? बताओ स्टूडेंट्स, इसके आगे हमने क्या किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किया. वेल डन रुन्मयी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? चलो पढ़ने शुरू करते हैं, ठीक है. सो हमने क्या किया? We started with eukaryotic cells. मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, as if हमने पढ़ा ही नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसा इमेजिन करते हैं. Let us begin. Okay, so let us go deeper into eukaryotic cell. Today we are going to cover at least 3 to 4 cell organelles. एकदम सिंपल वाला, जो इसका आंसर हम सबको आएगा और जिसके ऊपर आप सबके सब चार्ट पेपर बनाओगे. ठीक है, चार्ट पेपर पे आपको मस्त पोस्टर बनाना है. ओके, ठीक है स्टूडेंट. थोड़ी देर में मैं आपको एक चार्ट पेपर भी दिखाऊंगा. अभी यहीं पे मेरे पास एक स्टूडेंट ने बनाया, 12th के बच्चे ने बनाया, तो मैं आपको वो कैमरा में दिखाऊंगा. ठीक है, आपको जरूर देखना एंड आपको समझे कि हाउ यू हैव टू मेक चार्ट एक्चुअली. ओके, आई विल सेंड इट इन योर ग्रुप आल्सो. ओके, सो आज अपन जो भी पढ़ाई करने वाले हैं, आप एक कलरफुल चार्ट पेपर लोगे, उस पे कलरफुल तरीके से यू विल एक्सप्रेस दीज कांसेप्ट्स ऑन अ चार्ट पेपर. डू नॉट रेफर एनी बुक, इंटरनेट पे भी नहीं जाना है. जो मैंने सिखाया उसी के बेसिस पे आपको क्या समझा आपको बना के दिखाना. Alright, Rohini, clear? Rohini? हाँ, very good. Sir, I don't have a chart paper. चार्ट पेपर नहीं होगा तो बुक में चलेगा ना? हाँ, कोई बात नहीं. चार्ट पेपर अपन दुकान कल खुलेगा, कल खरीद के बना देना. परसों खुलेगा, परसों खरीद के बना देना. ठीक है, और इस ड्राइंग बुक रहेगा तो उसके पे बना के मुझे भेज दे. ओके, लॉन्ग बुक वाले पेपर पे मत बनाना, बिकॉज लाइन रहेंगे ना तो क्लियर नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं आएगा. ठीक है, प्लेन पेपर पे चले, कोई भी प्लेन पेपर. चलो स्टूडेंट्स, let us proceed ahead. So what all things I can see in a normal eukaryotic cell, वो मैं अब देखने जा रहा हूं. So suppose क्रिश ने बोला कि आज मैं यूकैरियोटिक सेल की पढ़ाई करने वाला हूं, तो क्रिश को क्या क्या दिखेगा वो हम सब अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये रहा एक यूकैरियोटिक सेल. दिस इज वन यूकैरियोटिक सेल. ओके स्टूडेंट्स, and the outermost layer, this layer is known as, the outermost layer of eukaryotic cell is known as plasma membrane. Plasma membrane. सबके सब बोलो. ऑडियो आपका म्यूट रहेगा लेकिन आपको बोलते रहना है, मुझे कैमरा में दिखना चाहिए आप बात कर रहे हो. वेरी गुड सारा, वेल डन, शाबाश. सो ऐसे बोलते रहो. ठीक है श्रेया, you have to keep on speaking. Your audio should be on mute, but you have to keep on speaking so that I can make out ki yes, you are repeating whatever things I am asking you to repeat. Okay, so outermost layer is plasma membrane, which is also known as, कौन बोलेगा इसको alternative term, कौन बोलेगा? Yes Sarah, well done. Cell membrane. Cell membrane. Yes, I saw her repeating the other name. Cell membrane. Correct students? Cell membrane इसका एक और नाम है, cell membrane. Plasma. Plasma lemma. Plasma membrane. कुछ भी अभी आपको लिखना नहीं. Nobody has to write anything. Nobody has to write anything. ये मैं सारे इमेजेस आपके ग्रुप पे डाल दूंगा. जब मैं बोलूंगा तभी लिखना, उसके पहले लिखना नहीं है. ओके, चोरी से भी नहीं लिखना है कि चोरी मैं लिख दूंगी समझ में नहीं आएगा सर को, ऐसे कैमरा यहाँ पे दिख रहे है, यहाँ पे हाथ चल रहा है, वो वाला मत करो. ठीक है, ध्यान दो पूरा यहाँ पे. नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज
cell membrane is also known as plasma lemma. क्या नाम है? प्लाज्मा लेमा. सो फटाफट से एकदम फास्ट आपको तीनों वर्ड्स बोलने हैं, तीनों नाम. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा. जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी. सानिका बोलना है, सुनना नहीं, बोलना है. Yes, okay. Rukhsar is also here. Well done, Rukhsar. Very good. चलो, everyone, तीनों नाम लो फटाफट से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा. लेमा लेमा लेमा. ऑडियो म्यूट कर ले रुखसार, ऑडियो म्यूट कर ले. ओके. अच्छा, कितने बहुत ज्यादा शर्मीले लोग हैं. हाँ, शर्मीले लोग बहुत सारे बैच में हैं. सारे शर्मीले लोग कैमरा ऑन कर लो. याद है ना, हमने लास्ट टाइम ही आपसे वादा किया था हम आपको नजर नहीं लगाएंगे, तो आप कैमरा ऑन रखिए. चलो, ओके, लेट अस प्रोसीड अहेड. एंड वी हैव, ये बैच में आपका जो ये जो बैच है ना, इसमें बहुत सारे क्विक स्टूडेंट्स भी हैं जो फटाफट से कैप्चर करते हो, फटाफट से आपको आंसर देंगे. ऐसे भी बच्चे बहुत सारे. सो आज मैं आपको उन सबसे मिलाऊंगा. मैं एक एक करके सबके नाम लूंगा, वो सब आपको ये सारी चीजें रिपीट करके बताएंगे, तो आप भी उनके साथ रेडी हो जाओ. शायद आपका भी नाम आ जाए, तो यू शुड बी रेडी टू आंसर. ओके, सो द मोर यू स्पीक विथ मी, द मोर इजीली यू विल बी एबल टू आंसर. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. सो outermost layer of a eukaryotic cell, outermost layer of eukaryotic cell is plasma membrane or cell membrane or plasma lemma. I am not including animal, sorry, plant cell इसमें include नहीं कर रहा हूँ फिलहाल. ठीक है, फिलहाल एक एनिमल सेल को ही देख रहा है. कौन देख रहा है? क्रिश देख रहा है. करेक्ट है ना? फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, what is the function of plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये पूछा रोशनी ने. किसको पूछा? क्रिश को पूछा. क्रिश सेल को देख रहा है. रोशनी ने बोला कि क्रिश प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो क्रिश ऐसे बोलेगा. क्या बोलेगा? क्रिश बोलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू थिंग्स सेल के अंदर आते हैं. करेक्ट है ना? चीजें सेल के अंदर किसके थ्रू आती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. तो ऐसा एरो बना दूं मैं, आपको समझ में आएगा. ये इन आने के लिए होता है. करेक्ट स्टूडेंट्स? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल हेल्प इन, it will help in absorption. It will help in absorption. Next, it will also help in secretion. Excretion मत बोल देना. क्या बोलोगे? Secretion. ठीक है, टर्म लिख दूं मैं यहाँ पे आपके लिए. Secretion. Next, let me write over here. Absorption. ठीक है? Okay students. And then the last function of plasma membrane is डिफेंस. सब ऐसे करो. मेरी कॉम कैसे करती है वैसे करो. डिफेंस. जल्दी 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 जल्दी. रेडी एवरीवन. सानिका तू करती क्यों नहीं ऐसे एक्शंस कर? हाँ, सबसे लास्ट में नाम लेना पड़ता फिर करती है. ओके, वेरी गुड. नहीं, मोबाइल पे नहीं मारना. साली मोबाइल पे मत मार ऐसे. प्रशिष्टि, वेयर आर यू? आई कैन नॉट सी यू. प्रशिष्टि. हाँ, अचानक से इसका से हाथ आता है स्क्रीन पे अचानक से. यस, आई एम प्रेजेंट. ओके, सो चलो एवरीवन रेडी. जब मैं बोलूंगा अब्जॉर्प्शन तो आप ऐसे करोगे. अब्जॉर्प्शन. देन सिक्रीशन बोलूंगा तो ऐसे करोगे. सिक्रीशन. एंड देन प्रोटेक्शन. absorption, secretion, protection. Absorption, secretion, protection. These are the three functions of plasma membrane. Are we ready, everyone? Everyone? Yes, sir. चलो रेडी. शुड वी स्टार्ट? चलो, जो मैं फंक्शन नाम लूंगा आप उसका एक्शन करोगे. ठीक है, मैं फंक्शन का नाम लूंगा, आप एक्शन करोगे. फिर मैं एक्शन करूंगा, आप नाम लोगे उसका. ओके, चलो स्टार्ट. फंक्शंस. अपन क्या कर रहे हैं पहले वो समझ लो. पहले खाली इसको एंजॉय मत करो. ठीक है, जैक एंड जिल वो सब नहीं चालू है. आपका बायोलॉजी चालू है. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर स्टडीइंग राइट नाउ. यू आर स्टडीइंग फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, रुखसार म्यूट. You are understanding function of plasma membrane. So functions of plasma membrane, there are three important functions. First one is absorption. करो एक्शन करो जल्दी. नहीं बोलना नहीं कुछ. रुखसार म्यूट कर ले, ऑडियो म्यूट कर ले. कुछ बोलना नहीं, खाली एक्शन दिखाना. ठीक है. So first function is absorption. Quickly start everyone. Absorption का साइन दिखाओ. हाँ, दिखाते रहो. करते रहना जब तक मैं नेक्स्ट फंक्शन ना बोलूं. सभी का absorption. Very good. Secretion. साइली एक्शन क्यों नहीं कर रही है?
हाँ एक्शन कर। यदि आसपास देख रही, कोई देख तो नहीं रहा है मुझे क्या क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे। घर वाले देखने चाहिए, ये सब क्या सिखा रहे हैं, ये क्या है? उनको बताओ अब्जॉर्प्शन, दिस इज नेक्स्ट 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 सिक्रीशन, सिक्रीशन एवरीवन, सिक्रीशन, डिफेंस, डिफेंस, प्रोटेक्शन, हाँ वेरी गुड, अब्जॉर्प्शन, 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 रुखसार चेंज हो गया है, चेंज हो गया एक्शन, अब्जॉर्प्शन करना है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, वेरी गुड, सिक्रीशन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, सिक्रीशन, वेरी गुड, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देता हूँ, I'll write over here third function. So this was my first function, absorption. This was my second function, secretion, and this will be my third function, which will be protection. Okay, protection. I'll take a screenshot. I'll send it in the group. Don't worry. आपको कुछ भी लिखना नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, मेरे साथ बोलते रहो, आपको पूरे लेक्चर का किस्सा याद होगा, दैट इज माय गारंटी। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंपोनेंट नंबर 3। अब क्रिश ने क्या किया, क्रिश को समझ में आ गया कि सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर का जो लेयर है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्रिश ने, रोशनी ने क्रिश को पूछा कि इसका फंक्शन क्या है, तो क्रिश ने उसको फंक्शन भी बता दिया कि देयर आर 3 फंक्शंस, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, अब पायल पूछती है क्रिश को, पायल क्या पूछती है कि क्रिश प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इतना बड़ा सा एरिया दिख रहा है, इस एरिया का नाम क्या है, इस एरिया का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रीजन व्हिच इज इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रीजन व्हिच इज इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आंसर बोलता है, यस शाबाश, वेल डन वेल डन, आंसर क्या बोलेगा क्रिश, आंसर बोलेगा, शाबाश क्या बात है, वेरी गुड। सो क्रिश आंसर बोलता है, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है इसका, क्या नाम है स्टूडेंट्स, cytoplasm, also known as, anybody else, any other name, any alternative name students, जल्दी 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 बताओ मुझे, कोई और अल्टरनेट टर्म इसके लिए, किसी को पता है, किसी को पता है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। ओके इसको ये भी बुलाते हैं, ये देखो साइटोसोल, क्या बुलाते हैं, साइटोसोल, CYTOSOL, CYTOSOL, ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल। कैसे बताओगे इसके बारे में, जो मैं लाइंस बोल रहा हूँ वो लाइंस आपको बार बार मेरे साथ रिपीट करनी है ताकि आप नोट्स में अपने लिख पाओ, ठीक है, आप यहीं पे आपको चीजें लर्न हो जाएंगी, आपको अलग से इसके लिए टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे लेक्चर खत्म हो जाए, यू कैन स्लीप प्रॉपर्ली, यू कैन बी ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाओ, टेलीग्राम, सब ग्राम पे आप जा सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ लेक्चर में बोलते रहना है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, इन अ यूकैरियोटिक सेल आउटर मोस्ट लेयर, एनिमल सेल की बात करने, चलो अपने सेल की बात कर रहे हैं, हमारे सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन अ सेल, ध्यान देना मैं प्लांट सेल की बात नहीं कर रहा हूं, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल वॉल, देयरफॉर मैं बार बार आपको ये बातें बता रहा हूं, ठीक है। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल वॉल। सो आउटर मोस्ट लेयर इन एन एनिमल सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा, आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन इज अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा हूं, the region inside plasma membrane, region inside plasma membrane, region inside plasma lemma, region inside cell membrane is known as bolo naam bolo, is known as cytoplasm. Well done, shabash. Cytoplasm, also known as cytosol, yes, well done, Cytosol. shabash, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरा, फिर से कैमरा ऑफ कर दे रहे हो, चलो साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, ओके क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब क्या हो गया, ये तो पूछा पायल ने क्रिश को पूछा था कि इस लेयर, इस रीजन का नाम क्या मुझे बता, क्रिश ने बोला इसका नाम है साइटोप्लाज्म, साइटोसोल। इमीडिएटली पायल का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पायल ने बोला कि ये कैसा है, ये रीजन का नेचर कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा नेचर। So कृष्ण बोला cytoplasm, this entire region is a jelly-like area, semi-solid, jelly-like area। कैसा एरिया है ये, कैसा एरिया है स्टूडेंट्स, jelly-like, क्या बोलेंगे अपन, ठीक है। So this is how I will frame it in this sentence. The region inside plasma membrane is a jelly-like area
known as cytoplasm or cytosol. Cytoplasm or cytosol. Okay, I'll start from the beginning. चलो ध्यान से सुनो. You people try to repeat just before me so that जब मैं बोलूं तो आपको समझ में आए आपने right बोला था कि wrong बोला था. मेरे बाद में हाँ मत करना, मेरे पहले बोलने की कोशिश करो. ठीक है. So in an animal cell, the outermost layer is known as dash or dash और डैश. आंसर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा. आपको आंसर ऑडियो पे नहीं देना है, सबके सब ऑडियो म्यूट रखो, मैं आपको टाइम दूंगा आंसर करने का. ठीक है. नेक्स्ट, inside the plasma membrane there is a jelly like area which is known as dash or dash. Answer is cytoplasm or cytosol. Clear? Next, और कंसेप्ट को आगे लेकर जा रहे हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तीन फंक्शंस होते हैं. फंक्शन नंबर 1 इज डैश, फंक्शन नंबर 2 इज डैश, फंक्शन नंबर 3 इज डैश. फंक्शन नंबर 1 इज एक्शन के साथ. फंक्शन नंबर 1 इज अब्जॉर्प्शन, फंक्शन नंबर 2 सीक्रेशन, फंक्शन नंबर 3 प्रोटेक्शन. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. पायल ने पूछा क्रिश को साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, तो क्रिश ने बोला जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर अपने को क्या क्या दिखता है. राइबोसोम दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है, गोल्गी एपेरेटिस दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है, लाइसोसोम दिखता है, प्लास्टिड दिखते हैं, क्लोरोप्लास्ट दिखता है, लाइकोप्लास्ट दिखता है, लिम्फोप्लास्ट दिखता है. इतने जितने भी लोग हैं ये सारे साइटोप्लाज्म में ही होते हैं. सो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है. ऑल डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल कंपोनेंट मैंने बोला ना स्टूडेंट्स, ये जो मैंने नाम लिए सबके, इनको आप क्या बोलते हो पता है. इनको आप बोलते हो, ये देखो टर्म यहाँ पे लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा. इनको हम बोलते हैं सेल कंपोनेंट्स. क्या बोलते हैं इनको हम? सेल कंपोनेंट्स. और वेरी गुड, और इनका नाम है सेल ऑर्गेनेल्स. क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स. Cell components or cell organelles. So cytoplasm is the space where cell components or cell organelles are dispersed. I'll repeat. Cytoplasm is the region. Cytoplasm is jelly-like area. Where cell organelles or cell components are dash. क्या बोलोगे? डैश आपको भी नहीं बोलना, आपको नाम लेना है इसका. सेल कंपोनेंट्स और सेल ऑर्गेनेल्स आर डिस्पर्स्ड. क्या बोलोगे? डिस्पर्स्ड. इमेजिन करो आपके घर पे केक आया. ठीक है, किसी का बर्थडे है. ठीक है, और केक आ गया. केक रखा है, ऐसे ओपन किया हमने, बॉक्स से बाहर निकाला, है ना, और आपको याद आया ये केक की तरह ही शायद साइटोप्लाज्म भी होगा. और आपके हाथ में छोटे छोटे कुछ पीसेस होंगे, कुछ किसी चीज के, प्लास्टिक या कुछ ऐसा कुछ रहेगा. आपने उसको फेंकना शुरू किया केक के ऊपर. So, आप ये क्या कर रहे हो? You are dispersing these materials on the cake. ये क्या करेगा? जब आप केक पे फेंकोगे कुछ चीज तो रिटर्न आएगी क्या बाउंस होके? नहीं आएगा. तो इस जेली लाइक एरिया साइटोप्लाज्म में भी चीजें ऐसी फेंकी नहीं गई हैं. You have to understand कि they are dispersed in the cytoplasm. They are suspended in the cytoplasm. Understood? सानिका समझा? हाँ, very good. ऐसा कंफ्यूज क्यों बैठी है? So shit. जैसे हम जुपिटर पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम टफ वाली. ओके, चलो अंडरस्टूड. शुड आई गो अहेड स्टूडेंट्स? शुड आई गो अहेड? यस. चलो आगे चलते हैं. ठीक है, डोंट वरी, अपन ये बार-बार रिपीट करते रहेंगे. डोंट वरी. एंड मैं हमेशा क्या करता हूँ पता है? मैं हमेशा पढ़ाने के बाद ना ऐसे चीजें गायब कर देता हूँ. ऐसे, ताकि आपको आंसर दिखे ही नहीं, ताकि आप मुझे बार-बार सोच के आंसर दो. सो दिस वाज कंपोनेंट नंबर 1. ओके, कंपोनेंट नंबर 1 के 3 फंक्शंस थे, जो 1, 2 एंड 3 मैंने यहाँ पे ऐसे एरो बना दिए. देन दिस इज योर कंपोनेंट नंबर 2, जिसके देखो कंपोनेंट नंबर 1 के 3 नाम थे. कंपोनेंट नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा अब तक मैं किसकी बात कर रहा हूँ. साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूँ. करेक्ट. साइटोप्लाज्म में सेल कंपोनेंट्स आने वाले हैं, सेल ऑर्गेनेल्स आने वाले हैं. सबसे पहला अपना सेल ऑर्गेनेल कौन होने वाला है, उस पे अपन आते हैं. चलो, सबसे फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल अपना कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, चलो माइटोकॉन्ड्रिया पहले भी मैं ले लेता हूँ न्यूक्लियस. चलो न्यूक्लियस को ले लेते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल is nucleus. The most important cell organelle is nucleus. Okay students, and nucleus contains
Chromosomes. Nucleus contains chromosomes. C for chromosomes. Chromosome is made up of DNA, and DNA is genetic material. समझ में आएगा? शॉर्ट फॉर्म रिपीट करता हूं, ठीक है? थर्ड कंपोनेंट, जानबूझ के मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आप टर्म्स मेरे साथ बोलो, आपको लर्न हो जाए. ओके, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल इज न्यूक्लियस. मेरे साथ आप रिपीट करो. इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन्स डैश. Nucleus contains dash. Nucleus contains dash. नहीं. C for nucleus contains chromosome. Very good. Chromosome is made up of DNA. श्रेया बोलते रहना है. श्रेया बोलते रहना है. DNA is the genetic material. Very good. ठीक है, वापस सब करें एक बार. Nucleus contains Chromosome is made up of DNA DNA is the material. genetic material. Well done. रिपीट करते हैं वापस से. अब फटाफट से थोड़ा फास्ट करेंगे. ऑडियो सबके सब म्यूट पे रखोगे. सबके सब ऑडियो म्यूट पे रखोगे और आप सबको बोलते रहना है ताकि मैं यहाँ से देख पाऊँ कि आप बोल रहे हो. ठीक है? Okay, 1 2 3 start. Nucleus is the most important component of cell organelle. Oh sorry, of a cell. ठीक है? Nucleus contains dash, which is made up of dash. Which is a dash? Genetic material. Understood? So तीन लाइन क्या थे? Nucleus contains chromosomes. Chromosome is made up of DNA. DNA is the genetic material. Clear है? वापस से करते हैं. Nucleus contains dash. Nucleus contains dash. Made up of dash. Is a dash. Well done. शाबाश. Well done. ठीक है, आगे चलता हूं मैं स्टूडेंट्स. I'll move ahead. ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट नंबर 4 पे जा रहा हूं स्टूडेंट्स. कंपोनेंट नंबर 4 चेक करो. कंपोनेंट नंबर 4 मुझे कैसे दिखाई देता है? ये देखो, आपको कुछ याद आया? ये क्या है? Which is this component, students? Mitochondria. Very good. Component number 4 is mitochondria. Actually singular होता है mitochondrion. Plural is mitochondria. Everyone keep your camera on. Do not switch off your camera. बाकी लोग क्या कर रहे हो? अफजल, अनुराग, आर्यन, मेक श्योर मुझे वापस से नाम रिपीट ना करना पड़े. ठीक है? अथर्व, नौशीन, निशा परमार, रिया पाटिल, रिया, दो रिया है. किसने भी कैमरा ऑन नहीं किया? रिया कैमरा ऑन नहीं किया. सभी का ने ऑन किया था. ऑन कर. सम टेक्निकल इश्यूज. वैष्णव, स्विच ऑन कर कैमरा जल्दी. मेरा कैमरा को थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ऑन नहीं किया. कैमरा में प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? सर ये कैमरा ठीक नहीं है क्योंकि इसमें ब्लर दिखता है. नहीं दिखने दे, चलेगा मुझे. ठीक है, हाँ, ऑन कर ले उसको. ऑन कर ले. चलो स्टूडेंट्स, quickly let us start. So I was saying mitochondrion. This is very interesting thing which you must know about mitochondrion. Singular is mitochondrion. This is singular. जैसे आप बोलते हो boy. Plural is boys. Girls. This is singular is mitochondrion. Plural क्या है इसका? इसका प्लूरल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप बोलते हो ना माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप टर्म बार बार यूज करते हो, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज अ प्लूरल टर्म. एंड माइटोकॉन्ड्रियोन इज सिंगुलर टर्म. अभी के लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया ही बार बार बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सो व्हाट आई विल से इज नेक्स्ट कंपोनेंट जो आज अपन पढ़ाई कर रहे हैं, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल और एनिमल सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन बोलो. चलो लेट्स बी स्पेसिफिक. Fourth component of animal cell today which we are studying is mitochondrion. Mitochondrion is also known as powerhouse of cell. करो ऐसे, powerhouse of cell दिखाओ जल्दी सबके सब. कैमरा में एवरीवन. शाबाश, वेल डन श्रेया.
सेकेंड टाइम उसको बोलना नहीं पड़ा, उसने फटाक से दिखा, अदरवाइज शी इज क्वाइट स्लो एक्शन वाइज, by hesitant है, सब हेजिटेंट रहेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जब जैसे जैसे आप एक्शन करोगे, घर वाली भी, अब याद है ना आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो तब जाके आप एक्शन करते थे बचपन में, एंड ये भी आपका बचपन है साइंस। सो टू स्टार्ट एक्टिंग, ओके, जैसे जैसे एक्टिंग करोगे आपको और अच्छे से पढ़ाई करने मिलेगी, आपको और अच्छी चीजें याद है ना सानिका, समझा? तो करना है अपने को, ओके। चलो क्विकली पर रिवाइज करते हैं, लास्ट 1 मिनट पेंडिंग, अगेन यू हैव टू जॉइन मी दिस सेम सेशन बाय यूजिंग सेम लिंक एंड पासवर्ड स्टूडेंट्स। जैसे सेशन एंड हो जाए वापस सेम लिंक एंड पासवर्ड यूज करके मुझे ज्वाइन करना है, फटाफट लास्ट मिनट में एक बार रिवीजन करते हैं। एनिमल सेल, दैट इज यूकैरियोटिक सेल, outermost component is known as dash, outermost membrane is known as dash, outermost membrane is known as dash, plasma membrane, cell membrane, plasma lemma। फंक्शन क्या क्या है? फंक्शन नंबर 1 absorption, एक्शन दिखाओ absorption का everyone, secretion, protection, very good। next, the region inside plasma membrane is known as dash, region inside plasma membrane is known as dash, cytoplasm, very good। cytoplasm is dash like area, dash